Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start Democratic Politics, that is Civics, chapter number 2. What is democracy? Why democracy? Now first of all, the chapter here only question is that what is democracy? Then according to you, what do you mean by democracy? What is a democracy? India is the best example of a democratic country. But what is a democracy? Democracy means it is a form of government in which the rulers are elected by the people. It is a form of government where rulers मतलब जो रूल करते हैं they are elected by the people. How? तो इन टर्म्स ऑफ वोटिंग हम वोट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली जो रूलर्स जो है वो इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल. One chief factor common to all democracies is that the government is chosen by the people. जो भी government form होती है it is chosen by the people. For example, in India we are following the democracy. So here in our country the government is chosen by the people. अब ये कौन सी government है तो right now अगर current पोजीशन की हम बात करें तो इट इज़ बीजेपी पार्टी. उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है राइट. सो और कैसे उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो when the election was conducted तो at that time they got the majority votes and so government form हो गया right. It also helps students to demarcate between democratic and non-democratic governments. Demarcate मतलब differentiate between democratic and non-democratic governments. तो उसके लिए हम examples देखेंगे further now. डेमोक्रेटिक क्या है तो हमने इंडिया का एग्जांपल ले लिया दैट नाउ इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म होती है एंड इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल. ओके, सो पीपल हैव द राइट, पीपल हैव द अथॉरिटी टू इलेक्ट द पीपल, to elect the government, like to elect the people, to elect the rulers. एंड व्हाट अबाउट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे क्या होगा मोनार्की होगी राइट. From the non-democratic government, take the example of Myanmar, where rulers were not elected by the people. अब यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो म्यांमार जहाँ पे रूलर्स जो है दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल बट दोज हु वर इन चार्ज ऑफ द आर्मी ऑफ द कंट्री, जो पूरे कंट्री के आर्मी का जो इसको इंचार्ज दिया था, टुक ओवर इट एज रूलर्स एंड पीपल हैड नो से इन हिज डिसीजन. दैट जो आर्मी के इंचार्ज थे कंट्री के उन्होंने पूरा रूल कंट्री का अपने हाथ में ले लिया एंड पीपल वर स्पीचलेस, दे वर नॉट एबल टू सी एनीथिंग about this decision. So we can't call it as a democratic country. Okay, dictators like Pinochet that is in Chile are not elected by the people. This applies to monarchy. Monarchy क्या है जहाँ पे king rule करता है, that is a monarchy. Even the king of Nepal and Saudi Arabia ruled not because the people have chosen them to do so but because they happen to be born into the royal family. First of all, बहुत पुराने टाइम की बात करें तो एट दैट टाइम यहाँ पे भी एग्जांपल दिया है नेपाल एंड सऊदी अरेबिया का कि वहाँ पे किंग जो थे वो रूल कर रहे थे. क्यों? बिकॉज उनको चूज़ नहीं किया था बट दे बिलोंग टू द रॉयल फैमिली. तब के टाइम में जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था मतलब दोज वर रिच पीपल तो दे वर अलाउड टू रूल. मतलब जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है दे वर मेड किंग राइट. दे वर गिवन द पोजिशन एंड दिस हैपेंड इन नेपाल एंड सऊदी अरेबिया. So that was all about the definition of democracy, that it is a form of government in which rulers are elected by the people. Okay. Now when we talk about features of democracy, the simple definition of democracy raises many questions. That who are the rulers in this definition? कौन है ये rulers? Which officials must be elected for any government to be called a democracy? कौन से decision लिए होंगे by non elected officials in a democracy? मतलब ये rulers कौन है? What kind of election constitutes a democratic election? कैसे टाइप का इलेक्शन हुआ होगा? What condition must be fulfilled for an election to be considered as a democratic country, right? Who are the people who can elect? कौन से people है? Should this include every citizen on equal basis? Can a democracy deny some citizens this right? मतलब कौन होगी ये people? And the last question arises, that is what kind of a form of government is democracy? ये government कौन से type का form है? Like which type of form it is? Can elected rulers do whatever they want to? Here it means that कि अगर उनको जो भी करना है they can do and
और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स, उनके पावर्स कितने हैं, लिमिट्स है कि नहीं. इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स टू द सिटीजन. सो for all this question we are going to discuss the features of democracy ahead. Let's continue it. That is major decisions by elected leaders. When we talk about Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. He overthrew a democratically elected government. क्या किया उसने, जो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको निकाल दिया ये परवेज़ मुशर्रफ ने, एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री. और फिर उससे उसकी जो डेजिग्नेशन थी, पोजीशन जो थी, वो प्रेसिडेंट बन गया. एंड इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन. सबने सपोर्ट किया और उसको 5 year का एक्सटेंशन मिल गया टू बी अ प्रेसिडेंट. एंड योर रेफरेंडम मीन्स जनरल वोट गिवन बाय द electorate, like in single political question general vote was given in the country, और जिससे उसको 5 year का extension to become a president मिल गया था. Meanwhile, after passing of this legal framework order, elections were held to the national and provincial assemblies. जैसे हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम चल रही है, वैसे नेशनल एंड प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल पे असेंबलीज व फॉर्म्ड एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स व ग्रांटेड सम पावर्स. उसने थोड़े थोड़े पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे. बट द फाइनल पावर रेस्टेड विथ मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ. उसने थोड़े पावर्स डिस्ट्रीब्यूट तो किए, बट द फाइनल पावर बोलते हैं that was rested with the military officers or the General Musharraf, as he was the president of the country. Hence we can conclude that it was not a democratic country, right? क्योंकि democratic country वो है जहाँ पे powers are already distributed, but here उसने power distribute तो किए, but the final power rested with him only, so we can't call it as a democratic country. Thus we can conclude that in a democracy the final decision making power must rest with those elected by the people. So यहाँ पे पहला फीचर ये आता है that in a democracy the final decision, अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो किसको मिलने चाहिए, जो पीपल ने जिसको इलेक्ट किया है वो. ऐसा मुशर्रफ के जैसा नहीं होना चाहिए फाइनल power rested with this so and so person. It should not be like that. Powers अगर distribute कर दिए तो he or she must be having that authority to take some decision by their own. Okay. So in a democracy this is the first feature. The final decision making power must rest with those elected by the people. जिसको elect किया है उसके हाथ में final authority है. Second is free and fair electoral competition. Now here free and fair electoral competition में when we take an example, in China elections are regularly held after 5 years as in India also. चाइना में भी इलेक्शन रेगुलरली 5 years के बाद होते थे फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट. हमारे जैसे सिस्टम कॉल कॉन्गू रेमिम डेब्यो देहू, दैट इज़ नेशनल पीपल्स कांग्रेस इन शॉर्ट. चाइना में भी आफ्टर एवरी 5 years कंट्री के पार्लियामेंट और वो सब के लिए वो लोग 5 years के बाद इलेक्शन हेल्ड करते थे. बट बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. ये कैसी बात हुई कि अगर इलेक्शन के पहले कैंडिडेट जो भी खड़े उनको अप्रूवल लाना है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का. द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी. तो इसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो चल रही है उनको पूछ के सब करना है? नो ना. ऑल्टरनेटिवली सिंस its independence in 1930, Mexico holds elections after every 6 years to elect its president. चलो वो तो बात हो गई, उनको एक 1930 में मिल गया. बट आफ्टर दैट मेक्सिको जो है इट होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years उनके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए. वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम चल रही है, नॉट लाइक अस दैट इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम. बट अंटिल 2000 every election was won by a party called PRI जो है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी. अब ये जो कंट्री थी द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूलर, बट अंटिल 2000 every
इलेक्शन वॉज वन बाय अ पार्टी, हर एक पार्टी जो थी, मतलब हर एक साल जब भी इलेक्शन होता था तब कौन जीता था, तो ये PRI, दैट इज़ वो पार्टी थी, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी। अपोजिशन पार्टी तो इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं करते थे, लेकिन कभी भी जीतने का सोचा ही नहीं था, बिकॉज पता है ये PRI टीम जो है वो बहुत पावरफुल थी, एंड दे ऑल्सो यूज्ड मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शंस। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स, ये सब डर्टी ट्रिक्स यूज़ करते थे। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर PRI के लिए, तो ये तो सब डर्टी ट्रिक्स ही हुई। इवन मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज दैम। Sometimes polling booths were shifted also from one place to another in the last minute, कि लगे डाउटफुल के PRI नहीं जीत सकती तो उन्होंने ये काम भी किया है, विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। सो PRI ने बहुत लार्ज सम ऑफ मनी जो है वो कैंपेनिंग के लिए स्पेंड किया था, जस्ट टू गेन द वोट। सो ये वोट को हम, ये इलेक्शन को हम कंसिडर कर सकते हैं दैट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स? नो ना, देर आर मेनी प्रॉब्लम्स हियर। इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। चाइना में भी इलेक्शन जो है वो ऑफर नहीं करते थे पीपल को, सीरियस चॉइस ही नहीं दी थी पीपल को वहाँ पे। So should we consider the election as example of people electing their rulers? Of course, answer is no. In China, the elections do not offer the people any serious choice. China में भी election जो होता था वो people को कोई choice नहीं मिलती थी, जैसे आज हमें इंडिया में मिल रही है। They have to choose the ruling party and the candidates approved by it. उनको ruling party को ही choose करना, पता है ये जीत रहा है उनको ही वोट करना है, और कैंडिडेट्स अप्रूव भी कर देते थे। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? चॉइस हम कब बोलते हैं कि आपको 2 और 3 टीम्स है उसमें से, या तो 2 और 3 पार्टीज़ है उसमें से एक को आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे तो पता ही है रूलिंग पार्टी उनको ही सिलेक्ट करना, ये पावरफुल है उनको ही करना है, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते दैट चॉइसेस आर गिवन, राइट। और हमने मैक्सिको का एग्जाम्पल दिया, तो इन दी मैक्सिकन एग्जाम्पल पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस, बट इन प्रैक्टिस दे हैज़ नो चॉइस। पीपल को चॉइस मिलती थी, बट पता ही था कि हम कुछ भी कर ले PRI टीम जो है वो ही जीतने वाली है। देर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड, रूलिंग पार्टी को कोई हरा नहीं सकता था। ऑब्वियसली दे वर यूजिंग डर्टी ट्रिक्स, सो दिस आर नॉट फेयर इलेक्शंस, राइट। सो यहाँ पे द सेकेंड फीचर इज डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन where those currently in power have a fair chance of losing. डेमोक्रेसी ऐसा होना चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंटेस्ट कर सके, जहाँ पे जो करेंटली पावर में है, जो करेंटली पोजीशन जिसको मिली है, फेयर चांस मिले उसको लूज़ करने की। लाइक ऐसा नहीं है कि इतनी पावरफुल बन जाए कि उसको हरा ही ना सके, उसका कॉम्पिटिटर भी सेम लेवल का उसको मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई नहीं है उसके जैसा। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो भी डिसीजन है वो पीपल के हो जाए, और पीपल जिसको मेजोरिटी में माने अकॉर्डिंगली वो पार्टी जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। सो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। ओके, so that was the second feature. Now third and fourth feature we will continue in the part 2 of this chapter. If you enjoyed watching my video, please do like and subscribe my channel. Even you can share my video. Thank you for watching. Do watch the second part of this chapter. Okay, thank you.